اپنے مضموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اس کا کس کو فائدہ پہنچے گا, کس کو اس کا نقصان پہنچے گا؟ انتشار کی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں، کسی غیر آئینی اور ملک دشمن سرگرمی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. آرمی چیف کا تقرر ایک آئینی فریضہ ہے جو وزیر اعظم نے ادا کرنا ہوتا ہے. عمران خان پہلے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ملک کو اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے، لانگ مارچ اور دھرنوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یوٹیوبر سے گفتگو. یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے. اس ادارے کو آپ متون کریں، اب صرف اپنی ذات کی سامنے رکھ کر. ہندوستان بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے باتیں کہی ہیں. یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا، ہیرو ہے ہمارا. یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. افواج پاکستان نے ملکی دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دیں. عمران نیازی اپنے اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا اور زہر اگل رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے. یہ شخص دشمن کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. جو ملک کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان تصویراتی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی. کاروبار اور تجارت میں اضافہ ہوگا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت سی پیک کے کردار کو وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی. اقتصادی ترقی کے چینی ماڈل کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. سیلاب کے دوران بروقت امداد کی فراہمی پر چینی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو. عمران خان کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے آ چکا. اقتدار سے محرومی اسے وطن دشمنی پر لے آئی ہے. پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. الیکشن کا اتنا ہی شوق ہے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا لیں. لانگ مارچ میں 10,000 افراد نکلے تھے جو اب 3,000 رہ گئے ہیں. کسی قسم کا خون خرابہ ہوا تو ذمہ دار پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت ہوگی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. عمران خان ملک دشمنوں کا آلہ کار بنا ہوا ہے. عمران نیازی ملکی اداروں کو کھوکھلا کرنے کی مضمون سازشوں میں سرگرم ہیں. دوسروں کو چور کہنے والے کو آج گھڑی چور کے نعرے سننے پڑ رہے ہیں. ملک کی سلامتی کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال. عمران خان نے خونی مارچ کا ڈرامہ رچا رکھا ہے. اقتدار کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتا ہے. علی امین گنڈاپور کی بندوقوں کی آڈیو لیکس منظر عام پر آ چکی. عمران نیازی نے اپنی 4 سال کی کارکردگی پر کبھی بات نہیں کی. جھوٹ کی بیساکھیاں کب تک اس کے کام آئیں گی؟ وفاقی وزیر شازیہ مری. عمران خان اقتدار کی ہوس میں ملک کا نقصان کر رہے ہیں. لانگ مارچ کی وجہ سے ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. جب بھی سی پیک کی بات ہو تحریک انصاف کو مارچ کی یاد آ جاتی ہے. عام انتخابات کسی کے کہنے پر نہیں مقررہ وقت پر ہوں گے. معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی. اہل لاہور نے فتنہ خان کا لانگ مارچ مسترد کر دیا. لانگ مارچ ناکام ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کی قیادت آپس میں لڑ رہی ہے. ملک کی سیاست میں عمرانی فتنے کی مزید کوئی گنجائش نہیں. ان کی بھول ہے کہ وہ فتنہ فساد کر کے مرضی کے فیصلے کرا سکیں گے. رہنما مسلم لیگ نون اسما بخاری. پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران خاتون صحافی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. نجی چینل کی رپورٹر صدف نعیم کنٹینر تلے آ کر جاں بحق. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صدف نعیم کے شوہر کو ٹیلی فون. مرحومہ کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. غم کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کی مرحومہ کے شوہر سے گفتگو. اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بھی جاں بحق ہونے والی صحافی صدف نعیم کے شوہر کو ٹیلی فون. دلی تعزیت کا اظہار. مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. وزیر اطلاعات.
धनों की वजह से कारोबार जो से मुअस्सर हो चुके हुए हैं, कोई कारोबार नहीं रहे और लोग जो से हैं घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे, जीरो कारोबार हो चुके हुए हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसमें इनको कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान एक फितना आदमी है, वो अपना मिशन चला रहा है, डुगडुगी बजा रहा है बस। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। पैसे का ज़िया हो रहा है, पेट्रोल का ज़िया हो रहा है, कारोबार एक दफ़ा रुक गया है, सारा मैशत डाउन होती जा रही है। शहरियों, ताजिर बिरादरी, माशी माहिरीन की जानिब से PTI के एहतजाजी सियासत की शदीद मजम्मत। हुकूमत को मुल्की मईशत और सैलाब जदगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। ऐसे हालात में इमरान खान ने एहतजाजी मार्च शुरू करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी अफवाज की मश्क नस्लुल बहर फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। शुमाली बहरे अरब से फायर किए गए मिसाइल ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियासी और इमाराती बहरिया के आला हुकाम ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर पर भारत की अटूट अंकीरेट को यकसर मुस्तरद कर दिया। मसला कश्मीर हल ना होने से जनूबी एशिया में एटमी जंग छिड़ने के इम्कानात हैं। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिविल में हेलोवीन के हजूम में भगदड़, 150 अफराद हलाक, 130 से जायद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 20 गैर मुल्की भी शामिल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में वजारत तालीम के दफ्तर में कार बम धमाका, 100 अफराद हलाक, 300 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मायानाज मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सितारा इम्तियाज और निगार अवार्ड से नवाजा गया। जरा सोचिए, डॉलर की कीमत नीचे जाने के साथ साथ मईशत की बहाली और हमेशा चीन के दौरे से पहले जब सीपैक पर अमल दरामद के फैसलों की घड़ी आती है तो कोई ना कोई फसाद या फितना खड़ा कर देते हैं। आखिर वो किसके एजेंडे पर अमल पैरा है? किसी के झूठ पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर मत लगाएं। कौमी इदारों के खिलाफ गालम गलोच और रियासती इदारों के इमारात पर धावा बोलना किसी तरह भी जमहूरियत, किसी तरह भी आजादी इजहार राय नहीं और ना ही इसकी इजाजत दी जा सकती है। अपने बच्चों और घर वालों, खास तौर पर नौजवानों को ऐसी मनफी सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकें। जब रियासत पूरे मुल्क में गैर मामूली सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात से निपट रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है और सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान के खोए हुए वकार को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, तो ऐसे में मुल्क को इत्तेहाद और इस्तेहकाम की जरूरत है या इंतशार की? फैसला आपका। वज़ारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरा चीन से दोनों मुल्कों के दरमियान तस्वीराती शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी, कारोबार और तिजारत में इजाफा होगा। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि दौरा चीन के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपैक के किरदार को मज़ीद वुसअत देने पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के चीनी मॉडल की तक़लीद करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचांग समेत चीन की क़यादत के साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। उन्होंने सैलाब के दौरान बरवक्त इमदाद की फराहमी पर चीन की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमसाया बरदर मुल्क चीन ने मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर अशिया फराहम की हैं। उन्होंने इक्तसादी, समाजी और सकाफती शोबों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की को सराहते हुए कहा कि दोस्त मुल्क आलमगीरियत पर यकीन रखता है। सीपैक एक आला मयार के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप मंसूबे ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे और बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दिया है।
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت ملک کے تمام حصوں میں تعمیر کیے گئے سڑکوں کے نیٹ ورک نے سفر کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم کا 1 نومبر کو چین کا سرکاری دورہ شیڈیول ہے۔ اپریل میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا چین کا پہلا دورہ ہے۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتشار کی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں، محض اپنی ذات اور انا کی خاطر قوم کو گمراہ کرنا عمران نیازی کا وتیرہ ہے۔ لاہور میں یوٹیوبرز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا ملک کو کمزور کرنے کی مذموم سازش ہے۔ درپیش اقتصادی چیلنجز میں ملک لانگ مارچ اور دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مزید تفصیل آغا مسعود خالد سے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل کے خاتمے کے لیے مخلصانہ شبانہ روز محنت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوں، مخلوط پارٹیوں کا اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہوں۔ انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اس ملک کو اگر غربت، بے روزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو خدارا پھر ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب، چین اور دیگر برادر ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب ملک کو معاشی طور پر مشکلات اور سیلاب کی وجہ سے اقتصادی طور پر ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، ایسے میں عمران نیازی لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس شخص نے دھرنوں کے نتیجے میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس کا کس کو فائدہ پہنچے گا، کس کو اس کا نقصان پہنچے گا؟ ایک اور کوئی آڈیو آئی ہے، کوئی گفتگو کریں کہ اپنا اسلحہ اور بندوقیں اسلام آباد، پنڈی، فلاں جگہ پہنچا دو، اب بتائیے۔ اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو پھر یہ شبہ رہے کہ یہ کوئی خونی مارچ نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے، جس کو ہم تنکا کر کے جوڑ رہے ہیں۔ پوری مخلوط حکومت دن رات محنت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے مسلح افواج کی قربانیاں مثالی ہیں۔ عمران نیازی ملکی اداروں پر بے بنیاد پروپیگنڈا اور زہر اگل رہا ہے، جس کا دراصل مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے عمل کو ناکام بنانے کے لیے جو ہوش ربا حقائق سامنے آئے ہیں وہ قوم کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ یہ وہ فوج ہے، یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے۔ اس ادارے کو آپ متون کریں، اب صرف اپنی ذات کی سامنے رکھ کر۔ ہندوستان نے پاکستان کا جو مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ، عمران خان واہ واہ واہ، اس نے DGI کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے باتیں کہی ہیں۔ یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا، ہیرو ہے ہمارا۔ یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کے اس بلنڈر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کو قائد کا پاکستان بنانے کے لیے ایسی ملک دشمن کارروائیوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو سیاسی انتشار اور قوم کے وسیع تر مفاد میں حکومت تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے تجویز غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ میں کسی قسم کا خون خرابہ ہوا تو ذمہ دار پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک عمر۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیالکوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے عمران خان کی تجویز پر حیرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی معاملہ ہے جس کا طریقہ کار واضح ہے۔ کیا اب سیاستدان ملک کے اس موقر ادارے کے سربراہ کا چناؤ کریں گے؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک ریگولر فیچر ہے پچھلے 75 سال سے۔ عمران خان کے
ذہن میں یہ کہاں آ گیا کہ یہ سیاست کا حصہ ہے اور سیاستدان مذاکرات کر کے آرمی چیف جو ہے وہ لگائیں گے؟ آئین اور قانون کے علاوہ سیاستدان مذاکرات کر کے اگر اپوائنٹ کریں گے تو پھر کیا رہ جائے گا ایک مقدس ادارے کا؟ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اداروں کے خلاف عمران خان کے بیانات کو بھارت اپنے پروپیگنڈا کے فروغ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اقتدار چھن جانے کے بعد تنقیدی بیانات میں اس حد تک چلے جانا کہ دشمن کے بیانیے کو تقویت ملے قابل مذمت ہے۔ ہمارا ازلی دشمن ہے، یہاں سے یہ 20-25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بارڈر ہے۔ آپ کے بیانات کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، وہ پاک فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف بار بار حوالہ دے رہے ہیں، ان کے چینلز جو ہیں۔ کیا یہ محب الوطنی ہے؟ پاک فوج کے افراد کو بار بار اٹیک کر رہے ہیں۔ 75 سال میں اس تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا پہلے کبھی۔ یہ خوشائن بات ہے کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، آپ نیوٹرل کو جانور قرار دیتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق قرار دیتے ہیں کہ آپ کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں کر رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں اس وقت سب سے اہم مسئلہ معاشی بحران سے نکلنا ہے، تاہم عمران خان کی ترجیح ہے کہ تمام اپوزیشن قید و بند میں ہو۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے نارووال میں پارٹی ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ملک دشمنوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، انہیں ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے سے کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ تفصیل جانیں گے محمد سفیان سے۔ نارووال میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ عمران نیازی اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ عمران نیازی اور بھارت کی کوشش تھی کہ IMF سے معاہدہ نہ ہو، یہ پاکستان کے قومی اداروں کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی فتنہ انگیز سیاسی اقدام سے پوری دنیا میں پاکستان کے مخالفین آج بہت خوش ہیں۔ آج پاکستان کو امن، استحکام اور یکجہتی کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جس سیلاب کی تباہی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، پاکستان معاشی بحالی جو عمران نیازی ورثے میں چھوڑ کر گیا ہے اس سے نکلنے کے لیے جو جدوجہد کر رہا ہے، اس کے بعد آج پاکستان کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے، معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے یہ حکومت دن رات محنت کر رہی ہے اور جدوجہد کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان اپنے 4 سال کی ناکامی کا حساب دیں۔ 4 سال عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا چور دوسروں کو چور بلاتا ہے، عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ چور کون ہے۔ عمران نیازی جس نے 4 سال اس ملک کو برباد کیا، اس کا انتقام ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ اس نے پہلے آئین کو بے توقیر کیا، پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا، عدلیہ کو بے توقیر کیا، الیکشن کمیشن کو بے توقیر کیا، اور اب وہ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو بے توقیر کرنے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ جو شخص دن رات جھوٹ بولے وہ پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون پہلے کی طرح اب بھی پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کر کے دکھائے گی۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کہ عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ اکٹھے کر کے جمہوری نظام کو سبوتاژ کر دیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں فرحانہ خان سے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ شازیہ مری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست فتنے اور فساد پر مبنی ہے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ملک و قوم کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اپنی سیاست کی خاطر وہ کبھی مذہب کارڈ کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی آزادی مارچ کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ امتحان تو دیکھے تھے پارٹس میں ہوتے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 پرچے ہوتے ہیں، لیکن یہ مارچ پارٹس میں نہیں دیکھی تھی۔ تو اب ہم یہ مارچ جو ہے یہ پارٹس میں دیکھ رہے ہیں، یہ حصوں میں ہو رہی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے حصوں میں مکمل ہوگی یا پھر کتنے حصوں کے بعد جو ہے ایک اور یو ٹرن لے لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان اور ان کے حواریوں نے گزشتہ 4 برسوں میں کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا۔ اب وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر عوام نے ان کے لانگ مارچ سے لا تعلقی کا اظہار کر کے باشعور ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر حقیقی اور اگر اصلی احتجاج کرنا ہے تو پہلے اپنے بچوں کو لاؤ،
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बमें अपने बच्चों के बैठकर एहतजाज किया करती थी। अब जब अपने बच्चों को तुम ये तकलीफ नहीं दे सकते तो तुम पाकिस्तान के बच्चों को गुमराह करने पे तुले हुए हो। ऐसा तो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं देखा था। उन्होंने तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए उसूल वाजे किए थे। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 70 अरब रुपए मुतासरीन सैलाब के लिए वक्फ किए। उन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत और उसके इत्तेहादी मिलकर कोशां हैं। विफाकी वजीर ने इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया सेल का इफ्तिताह किया और पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया के नुमाइंदों में एक्रेडिटेशन कार्ड भी तकसीम किए। विफाकी वजीर ने जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल की मजम्मत की, वहीं इस अज़्म का भी इआदा किया कि उनकी जमात की जानिब से शुरू किए गए सोशल मीडिया सेल का मुस्बत और तामीरी इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी चीन या सी पैक की बात आती है तो पीटीआई को मार्च या धरना याद आ जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हम सियासी लोग हैं और पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत पर पीटीआई ने सियासत करने की कोशिश की। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में पीटीआई किसी भी हद तक गिर सकती है। जब भी बी चौक पे मार्च है या ये लॉन्ग मार्च है, हमेशा चाइना जो हमारा एक बरादराना मुल्क है उसके विजिट के साथ रिलेटेड होता है। पिछली दफ़ा भी जब डी चौक पे धरना था तो चाइना के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी किया गया। हमारे वज़ीर आज़म जो है चंद दिनों बाद इन्होंने चाइना जाना था। सी पैक के हवाले से, बाकी हवालों से बहुत उस पर वहाँ पे गुफ्तगू करनी थी, वहाँ पर और MOU साइन करने थे। आज दोबारा वही पीटीआई लॉन्ग मार्च लेकर जो है यहाँ के अमन व अमान को, चीज़ों को ख़राब करना चाहती है और हमें पता नहीं है कि किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने इमरान खान को आईनी तरीके से वजारत उज़्मा के मनसब से उतारा। इमरान खान रात को पाँव पड़ते हैं और दिन को गले पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो मर्जी कर लें, आइंदा आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें आज इलेक्शन की तरफ, फिर शायद हुकूमत मजबूर हो सकती है। लेकिन इस स्लो मार्च से, इस फसादी मार्च से तो मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत अमन बहाल करने में नाकाम हो चुकी है। सवात के लोग क़याम अमन का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी ने कहा है कि मुल्की सियासत में इमरानी फितने की मजीद कोई गुंजाइश नहीं। इनकी भूल है कि फितना फसाद करके मर्जी के फैसले करा सकेंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि अहले लाहौर ने फितना खान का लॉन्ग मार्च मुस्तरद कर दिया है। लॉन्ग मार्च नाकाम होने की वजह से तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में लड़ रही है। इस फितना फसाद की सियासत को लाहौरियों ने रिजेक्ट किया। एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, सारे लड़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो जो 10 लाख बंदा आना था वो लाहौर से 10,000 भी नहीं निकला। इस लॉन्ग मार्च में जो है वो हिटलर की तरह पूरी तैयारी की गई है और अब उसके अंदर जो सोने पे सुहागा है इस फितना फसाद मार्च के अंदर, वो अब बारूद भी इकट्ठा किया जा रहा है। पंजाब वो नवाज शरीफ का गढ़ था, नवाज शरीफ का गढ़ है और हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गढ़ रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब नून लीग का गढ़ था, गढ़ है और रहेगा। अस्मा बुखारी ने कहा कि भारत चाहता है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इमरान खान के इल्ज़ामात से दुश्मन क़ुव्वतें खुश हो रही हैं। जो ज़बान ये बोल रहे हैं वो किसी पाकिस्तानी की नहीं हो सकती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इदारों की मजबूती से ही पाकिस्तान में सलामती है। बंद कमरों में माफी तलाफी और बंद कमरों में मोहब्बत और प्यार और सुबह जो है वो गालियां, ये सिलसिला गुज़श्ता 6 माह से जारी है। हिंदुस्तान अगर किसी बात पर खुश हो रहा है और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुश हो रही हैं तो इसका मतलब वाज़े है कि आप जो है
ऐसा काम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो मजबूत हो। और नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर, इमरान खान का लॉन्ग मार्च खूनी मार्च बन गया। निजी टीवी चैनल की रिपोर्टर सदफ नईम कंटेनर तले आकर जान की बाजी हार गईं। सदफ नईम लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए सादुकी में मौजूद थीं, जहां वो कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में उसके नीचे आ गईं। सदफ नईम को मुकामी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबर ना हो सकीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान इमरान खान के लॉन्ग मार्च के कंटेनर से गिरकर जाँ बहक होने वाली निजी टेलीविज़न की रिपोर्टर सदफ नईम के लवाहिकीन के लिए 50 लाख माली इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को ज़ाब्ते की कार्रवाई फौरी मुकम्मल करके चेक अहले खाना के हवाले करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने रिपोर्टर सदफ नईम के शौहर को टेलीफोन किया और उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने ताज़ियत करते हुए कहा कि गम की इस घड़ी में आपके साथ हैं, जानी नुकसान का इजाला हरगिज़ मुमकिन नहीं, ताहम पसमानदगान से हर मुमकिन ताउन और मदद करेंगे। समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिपोर्टर सदफ नईम की हलाकत पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्टर सदफ नईम की हलाकत के अंधुनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। वज़ीर आज़म ने मरहूमा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि सदफ नईम एक मुतहर्रिक और मेहनती रिपोर्टर थीं। उन्होंने रिपोर्टर की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खातून सहाफ़ी सदफ नईम के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूमा की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। अहले खाना से इज़हार हमदर्दी करते हुए सदर ममलूकत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च कंटेनर से गिरकर जाँ बहक होने वाली रिपोर्टर सदफ नईम के शौहर को टेलीफोन किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सदफ नईम एक मुतहर्रिक और मेहनती रिपोर्टर थीं। उन्होंने कहा कि सदफ नईम अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाँ बहक हुईं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहूमा की रूह के इसाले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान पंजाब पुलिस का ड्राइवर कांस्टेबल लियाकत अली दौरान ड्यूटी हरकत कल्ब बंद होने से जाँ बहक हो गया। लियाकत लॉन्ग मार्च के काफिले के साथ ड्यूटी कर रहा था। कांस्टेबल का ताल्लुक शेखुपुरा के नवाही इलाके खानका डोगरा से था। शहीद कांस्टेबल 3 बेटों और 1 बेटी का बाप था। और नाज़रीन, ये बात इंतहाई गौर तलब है कि जैसे ही वतन अजीज माशी इस्तेहकाम की तरफ सफ़र करना शुरू करता है, तहरीक इंसाफ किसी के इशारे पर वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ती है। पीटीआई के अपने रहनुमा खबरदार कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा, जिसमें जनाजे ही जनाजे और लाशें गिरेंगी। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट। 2014 में नून लीग की हुकूमत के महज 1.5 साल बाद इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च और धरने की शक्ल में यलगार कर दी और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबे सी पैक को रोकने और चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे को धरना देकर सबूताज किया गया। धरने के दौरान पीटीवी और पार्लियामेंट हाउस पर बराह रास्त हमले और पुलिस के आला अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीटीआई के मुतालबे पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने मुनज़्ज़म धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया और 126 दिन तक जारी रहने वाले धरने को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्हें आईनी तरीके से तहरीक अदम इत्माद के जरिए हुकूमत से चलता किया गया। इमरान खान ने हुकूमत खत्म होने के सिर्फ 1.5 माह बाद इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च की जरिए चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन अवाम की मायूस कुन तादाद से उनका लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में हौसला रखने का एतराफ भी किया। 100% मुझे शोर था कि गोली चलनी है और गोली चल रही है। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। बज़ाहिर जेल जाने के लिए हर वक्त तैयारी का दावा करने वाले इमरान खान 30 से ज़ायद मुकदमात में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों से जमानतें करा चुके हैं। वो जो कह रहे हैं उसमें हमें ये मकसद तो नजर आता है कि इक़्तिदार मुझे दे दो और मेरी मर्जी की तैनातियां कर दो। उस तौर तरीके से हट के अपनी मर्जी हम पर नाफिज करना चाहते हैं। एक आदमी जो कि किसी के जनाजे में नहीं शामिल होना चाहता, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करता है। इंडियन मीडिया चैनल्स दे आर वेरी हैप्पी विद हिज डिजाइन एंड विद हिज द एक्टिविटी ऑफ क्रिटिसाइजिंग। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं, हमारे मुल्क का 3 करोड़ 50 लाख अफराद जो है वो इस गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं, बेयारो मददगार पड़े और आपको सिर्फ इस वक्त भी अपनी सियासत की पड़ी है। साइफर को बैरूनी साजिश करार देना हो या IMF से मिलने वाली किस्त का मामला, इमरान खान और उनके करीबी साथियों की इन मामलात पर मुल्क दुश्मन ऑडियो लीक्स उन्हें कौम के सामने बुरी तरह बेनकाब कर चुकी हैं। ये कोई पहला मौका नहीं कि कोई सियासी जमात अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकली हो, लेकिन कभी अमरीकी साइफर, कभी हकीकी आज़ादी,
कभी अमर बिन मारूफ जैसे तब्दील होते बयानियों पर एक आम आदमी हैरान और परेशान है कि आखिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का असल बयानिया है क्या। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जरा सोचिए, डॉलर की कीमत नीचे जाने के साथ साथ मईशत की बहाली और हमेशा चीन के दौरे से पहले जब सी पैक पर अमल दरामद के फैसलों की घड़ी आती है तो कोई ना कोई फसाद या फितना खड़ा कर देते हैं। आखिर वो किसके एजेंडे पर अमल पैरा है? किसी के झूठ पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर मत लगाएं। कौमी इदारों के खिलाफ गालम गलोच और रियासती इदारों के इमारात पर धावा बोलना किसी तरह भी जमहूरियत, किसी तरह भी आजादी इजहार राय नहीं और ना ही इसकी इजाजत दी जा सकती है। अपने बच्चों और घर वालों, खास तौर पर नौजवानों को ऐसी मनफी सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकें। जब रियासत पूरे मुल्क में गैर मामूली सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात से निपट रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है और सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान के खोए हुए वकार को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, तो ऐसे में मुल्क को इत्तेहाद और इस्तेहकाम की जरूरत है या इंतशार की? फैसला आपका। वज़ारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने PTI के लॉन्ग मार्च को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम नज़ीर। लाहौर के शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च को मुल्की तरक्की और सलामती के लिए हकीकी खतरा करार दे दिया। उनका कहना है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ बंद होती हैं बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतबार भी मुतासिर होता है। जब मैशत थोड़ी सी चलनी शुरू होती है, ऊपर आती है, ये लॉन्ग मार्च या दूसरे चीज़ों की तरफ चल पड़ता है। उसकी वजह से अब गरीब आदमी पर कितना बोझ पड़ता है इसको पता ही नहीं है। तो बनी गाला में रहता है, करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है, घड़ी चोर बना हुआ है, घड़ियाँ चुरा गया, तोशक खाने के माल चुरा गया, हर चीज़ कर गया, उसको क्या है? फ़र्क तो हम जैसे आम आदमी को पड़ता है। मोहम्मद बिन सलमान जो शहज़ादा हैं, उन्होंने वादा किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि हम 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगेगी और इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना का टूर है, वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी अच्छे पैकेजेस और ये सी पैक को दोबारा रिस्टोर करना है। तो सर, ये जब भी मुल्क तरक्की की तरफ जाने लगता है ना, तो इस किस्म के लोग जो हैं वो खान साहब किस्म के लोग जो इंतशार पसंद हैं, वो इंतशार फैला के मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। PTI के लॉन्ग मार्च पर अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्की मईशत को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, उसकी तलाफी कई दहाइयों तक मुमकिन नहीं। अब इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करके इमरान खान किन दुश्मन मुल्कों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया का मीडिया और इमरान खान के बयानात वो दोनों एक पेज पर हैं और ये सबसे बड़ा जो है ना नुकसान है पाकिस्तान का। अब इंडिया का मीडिया जो कह रहा है वो कहता है जी हम लाखों रुपए जो है ना अपना खर्च करके ये हमने करना था, जो कि इमरान खान साहब ने ये बेड़ा उठा लिया है। शहरियों ने PTI की आदत से मुतालबा किया है कि मौजूदा हालात में लॉन्ग मार्च को फिलफौर खत्म करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत को काम करने दिया जाए ताकि महंगाई के पिसे अवाम और सैलाब में घिरे हमारे मुसीबत ज़दा बहन भाई हुकूमती इक़दामात से सुख का सांस ले सकें। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची के अवाम ने भी PTI के लॉन्ग मार्च को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ये मार्च नहीं, लोगों को वरगलाने और इन्हें मुश्तिल करने का एक हरबा है। तफसील ज़िशान अहमद खान से जानिए। अवामी फलाह बहबूद और महंगाई के बेकाबू जिन को काबू करने के लिए मौजूदा हुकूमत जहाँ इकदामात कर रही है, वहीं हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करने के लिए PTI गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा करते हुए लॉन्ग मार्च की सियासत कर रही है। अवाम का कहना है कि इस लॉन्ग मार्च से न सिर्फ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा बल्कि उनके रोजगार समेत दीगर मामूलात जिंदगी पर बदतरीन असर पड़ेगा। ये लॉन्ग मार्च सिर्फ अपनी सियासी मकासद को जो है पूरा करने के लिए, इदारों में तसादम पैदा करने के लिए कर रहा है। एक जो उजरत पे काम करने वाले लोग हैं वो इसके धरने से जो है वो भी बेचारे अपने रोजगार के लिए नहीं जा सकेंगे। ये सियासतदान नहीं है, ये मुल्क का वफादार नहीं है। अगर मुल्क का वफादार होता तो सब्र और तहम्मुल से काम लेता। सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ है, मुल्क को ये खोखला करना चाहता है, लोगों को तकसीम करना चाहता है। महंगाई उरूज पर उसने ला करके छोड़ दिया,
हर गरीब इस वक्त रोटी के लिए तड़प रहा है, लेकिन वो अपने लॉन्ग मार्च में लगा हुआ है। मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली पीटीआई अब कौम के होनहारों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है और नौजवान तबके को गुमराह कर रही है। क्या दिया इन्होंने, मैं यही नौजवान से पूछना चाह रहा हूँ कि 3.5 साल नौजवानों को क्या दिया, क्या उनके लिए पॉलिसी इन्होंने दिया। तो अब उनके पीछे लगने से अपने टाइम ज़ाया करना है, वक्त को ज़ाया ना करें। अब धरना देना, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। मुल्क को उल्टा उसका मंशत को जाम करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं। अदारों पे तसादम, गाली गलोच पर और बदतमीज़ी पर, ये हमारा सियासत नहीं है। जो हमारा सियासत था वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना था, अदम व तहमत था, अदारों के साथ चलना था और मुल्क की बालादस्ती के लिए सपोर्ट था। मुल्क में जहां सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी फैलाई है, सूबों के अवाम तकलीफ में मुब्तला हैं और सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और बहाली एक बड़ा चैलेंज है, वहीं इमरान खान सैलाब ज़दगान से इजहार हमदर्दी तो दूर की बात, अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के अवाम ने भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत और मईशत के खिलाफ साजिश करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी लॉन्ग मार्च ने अवाम को शदीद जहनी इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। अवाम का कहना है कि बलूचिस्तान पहले ही सैलाब से शदीद मुतासिर और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतशार और मुफाद पर मबनी सियासत किसी तौर काबिल कबूल नहीं। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेके निकला हुआ है, लोग पहले से ही जो है ना खाने पीने के लिए परेशान है, तो बेहतर ये है कि उसको ये अपना लॉन्ग मार्च रोकना चाहिए। धरना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही हमें हमारे जितने अच्छे महकमे हैं हमारे मुल्क के, तो हम उनके साथ हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। और पूरी दुनिया में देख लें हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये धरने वगैरह की सियासत हमें नहीं करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सारा कारोबार इससे जो है बहुत परेशान है, सारा कारोबार ख़त्म हो गया है ना। अवामी राय के मुताबिक इमरान खान की हर्जा सराई से भारतीय अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। मुल्क की सलामती के लिए लाजिम है कि मुत्तहिद होकर लॉन्ग मार्च की आड़ में होने वाले मनफी प्रोपेगंडे को मुस्तरद किया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने पीटीआई की एहतजाजी सियासत को मुस्तरद करते हुए कहा है कि एहतजाज की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। इमरान खान ने एहतजाजी मार्च शुरू करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वजह से इन्हें धरने नहीं देने चाहिए। और जो इलेक्शन की बात कर रहा है ना, इलेक्शन भी टाइम पे ही होंगे। आज भी जो रोडों पर निकला है अवाम को परेशान कर रहा है, ऐसे अभी कुछ हासिल नहीं होगा। धरने जारी जा रहे हैं। इमरान खान को कुछ नहीं मिलना, पहले भी कुछ नहीं हासिल हुआ। लोगों ने जहां पर दूसरे शहरों को हमारे जो तहसीलात का सामान है, वो जो दीगर गुड्स सामान है, वो भी नहीं पहुंच पाता। कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल मुअत्तल हुई पड़ी हैं। देखें इस वक्त बाजार की सूरत हाल, कोई गाहक नहीं है, सुबह के बैठे हुए। अवाम बेचारी फाकों पर मजबूर हो गई है। आए रोज कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई। खान साहब ने तो पाकिस्तान में बस एक ही इशू है कि धरना, रैली और फड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। कल दा रोड बंद किया पे, सारे घर बैठे ने, मजदूरां दी दिहाड़ियां टुट गई। एक बंदा मजदूर है जेड़ा अगर मजदूरी ते एक दिन ना जावे ते उनके घर जेड़ा ना रोटी नहीं पकदी। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जामशोरू के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन में राशन तकसीम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली डाहरी। सेवन में मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पूरी तवज्जो मुल्की मईशत को बेहतर करना और सैलाब मुतासरीन की बहाली है। ये वक्त लॉन्ग मार्च या धरनों का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद का है। पीटीआई की और इमरान खान की तरजीह कभी भी सैलाब नहीं रही। जिन जगहों पे देहात उजड़ गए, चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे लोगों को एक इंतहाई तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हैं, और उस वक्त वो इलेक्शन का मुतालबा लेके निकले हुए हैं। इलेक्शन इंतजार कर सकता है, बल्कि उसका तो असल वक्त ही अक्टूबर में होना है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क के अवाम ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है। लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचता है और मुल्क इस वक्त अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि गवर्नर पंजाब के दौरा करने के मशकूर हैं। 11,000 खानदानों को राशन फराम किया गया, जबकि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत इक़दाम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम नवंबर के एंड तक, सिवाय बहुत ही जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ है वहाँ पानी रह जाएगा, हम पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ताकि लोग अपना
रबी का फसल कर सकें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि घरों की तामीर के लिए वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन ले रहे हैं, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले वज़ीर आला सिंध और गवर्नर पंजाब ने सेवन के करीब गांव कादिर बख्श भालाई में मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों और मंचर झील का भी दौरा किया। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला सिंध ने सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 7 में नए जदीद ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ 7, जामशोरो। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पर भारत की अटूट अंग की रट को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि तनाज़े कश्मीर हल न होने से जनूबी एशिया में एटमी जंग छिड़ने के इम्कानात मौजूद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी एक बयान में आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया है कि मकबूजा इलाके में बिगड़ती हुई सूरत हाल को नज़रअंदाज करना किसी के मफाद में नहीं। बयान में कहा गया है कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रहनुमा फरीदा बहन जी ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए भारत की जालिमाना कार्रवाइयों और फौजी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। कश्मीरियों को रोजाना की बुनियाद पर शहीद और बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में नजरबंद किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं शेख अब्दुल मतीन और इम्तियाज़ वानी ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं और इस अजीम मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। कश्मीरी शहादा को पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम में दफनाया जाना पाकिस्तान से कश्मीरियों की मोहब्बत का सबूत है। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने बार्सिलोना की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तनाज़े कश्मीर की बैनुल-अक़वामी हैसियत है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों से भी वाज़ेह है। उन्हें खुद इरादियत का हक दिया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी अफवाज ने मश्क नस्र अल बहर के दौरान फायर पावर का शानदार मुजाहरा किया। दोनों ममालिक के बहरी और फ़ज़ाई यूनिट्स ने शुमाली बहरा अरब में मिसाइल फायर किए और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और अमाराती बहरिया के आला हुकाम ने मिसाइल फायर करने का मुशाहिदा किया। मश्क से दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ नौइयत के बहरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। डेनमार्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ताउन से IT की बरामदात को बढ़ाने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसील शाहरुख शफी से जानिए। डिजिटल टेक समिट के नाम से कोपनहेगन में होने वाली नुमाइश में पाकिस्तान की जानब से IT और टेक कंपनियों ने हिस्सा लिया। बेला सेंटर में होने वाली 2 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल पर हाज़रीन ने खुसूसी दिलचस्पी ली। डिजिटल टेक समिट जो कि कोपनहेगन में IT का एक बड़ा इवेंट है। गुज़िश्ता 2 साल से हमारी इस सिलसिले में कोशिश रही है कि पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को डेनमार्क में मुतारिफ करवाएं। इसके ज़रिए से नॉर्डिक का जो ये रीजन है वहाँ पे हमारी टेक इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल होल्डर्स ने हिस्सा लेते हुए अपनी मसनूआत पेश की। कोपनहेगन में पाकिस्तानी सफारत खाने और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के तावन से होने वाली नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनियों ने भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की जानिब से मुल्की स्टार्टअप को बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई के लिए ऐसी एग्जीबिशंस खुशाइंद हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, छोटे और बड़े पैमाने की सनतों का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। SMEs के फ़रोग़ से न सिर्फ रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं बल्कि बरामदात में भी इजाफा होता है। तफसील जानेंगे समीउल्लाह से। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की बिलखसूस बड़ी सनतों की नशोनुमा का दारोमदार छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों यानी SMEs पर होता है। पाकिस्तान का शुमार तरक्की पजीर ममालिक में होता है और इसकी मईशत में SMEs अहम किरदार अदा कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में SMEs की तादाद 32 लाख है। ये छोटी सनतें मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हमारी जो अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है उसमें भी हमारे स्मॉल एंड मीडियम साइज की इंडस्ट्री को बैकबोन करार दिया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको जिसको कहते हैं इग्निशन ऑन, ये आपको इमीडिएटली आपको जो है ना बिजनेस देती है और रोजगार देती है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी भी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। CPEC का वेस्टर्न रूट अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो गया है। हमारा डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान का लार्जेस्ट इकनॉमिक जोन जो द्राबन इकनॉमिक जोन है
वो लिंक हो गया इनके साथ। 3 रीजन बना दिए हैं, जिसमें एक सदर्न रीजन के जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, एक सेंट्रल जैसे मर्दान, सोआबी, चरसता, तीसरा हमने हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा और उसको लिंक कर दिया है स्वात के साथ। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फेज़ ख़त्म हो गया, अब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जा रहे हैं, और हमारी फेडरल गवर्नमेंट का भी यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको ज़रा फास्ट ट्रैक पे ले आएं। छोटी सनतों के लिए शहरों के नजदीक खुसूसी इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं। इसके साथ SMEs सनतों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी और वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देने की जरूरत है, जिससे मुल्क भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में चौथा सालाना जश्न अरमगान अदब अवार्ड शो और मुशायरा हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर शअरा और अदीबों ने शिरकत की। तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। शायर और अदीब किसी भी मुल्क और मुआशरे का आईना होते हैं। इस्लामाबाद में चौथे सालाना जश्न अरमगान अदब अवार्ड शो और मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जफर इकबाल अंजुम ने की। शायरों और अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अरमगान अदब रसाले को खूब सराहा। हर साल इसमें जो लोग शायर होते हैं, किताबों के नई किताबों पे इनाम भी, मुशायरा भी, तो अदब के जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको उनका एजाज़ दिया जाता है। शुरा के जो क्लासिकी भी हैं और जदीद भी हैं उनके मजमूए पढ़े हुए हैं, तो इस तरह से मेरे लिए इसने बड़ा एक उस्ताद का, मुशफ़िक उस्ताद का काम किया। अगरचे वो दौर नहीं रहा कि जब इस तरह के रसायल बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से निकाले जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कुछ ऐसे लोग ज़िंदा हैं कि जो किताबों से, रसायल से मोहब्बत करते हैं। रसाले शाया हुए हैं, उनकी तकरीब है। जिन लोगों ने पाकिस्तान भर में इल्मी और अदबी काम किए, उसमें नसर और नज़म दोनों शामिल हैं, उस पर अनावात दिए जा रहे हैं। अदब की खिदमत के लिए और नामवर अदीबों को अवार्ड देने के लिए बाकायदा तौर पर किताबें जमा करके एक जूरी के ज़रिए ये सिलसिला किया गया, और मैं उन तमाम अदीबों और शायरों को मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर मुशायरा भी हुआ, जिसमें नामवर शायरों ने अपने कलाम पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। पूरे मुल्क से रवां साल शाया होने वाली 150 किताबों पर बज़्म अरमगान अदब और दुनियाए उर्दू पब्लिकेशन की जानिब से सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -3, स्कर्दू 0 और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 12, लाहौर 18, कराची 20, पेशावर 14, कोयटा 7, गिलगित 3, मुजफ्फराबाद 12, मरी 10, दीर 5, चित्राल 5, रावलाकोट 3, मालम जब्बा 7, फैसलाबाद 17, मुल्तान सरगोदा 18, श्रीनगर 4, जम्मू 16, लेह 3, पुलवामा 13, अनंतनाग 12, शुपैया 11 और बारामूला में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।